بھائی جان آئندہ کے بعد انشاءاللہ ہمارے درمیان جو بات ہوگی ہم آپس میں ڈسکس کریں گے، اور ابھی اس کے لیے ہم کڑھائی منگواتے ہیں انشاءاللہ، کھلائے بغیر تو نہیں اس کو چھوڑیں گے۔ ابھی اس بھائی کو کہا ہے کہ سامنے موبائل کی سب سے بڑی جو شاپ ہے اوان کی سامنے کھڑی ہوئی ہے، ڈبہ پہ ایک فون بھی ہے، جو فون سمجھ آئے لے جاؤ، اس کو ابھی ہم آفر کریں۔ غلط لکھا تھا نا، ایمانداری سے بالکل غلط لکھا تھا، لیکن سوشل سفر والے حقوق سندھ مارچ کے بعد میری ایک بھی پوسٹ نہیں ملے گی، نہ کمنٹ ملے گا۔ لوگ مجھے بھی بھڑکا رہے، لوگ مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو یہ کھلا کھلا آپ کے خلاف لکھ رہا ہے، آپ اس کے خلاف جو ہے نا وہ ایکشن لیں، آپ اس کے خلاف رپورٹ کریں، سائبر کرائم بنتا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بہرحال اور ہم نے ایک نیا فون بھی ان کو باکس پیک دیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا، اس بھائی نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، اپنے بڑوں کے کان میں ہر چیز ڈالی، لیکن میں نے کوئی ایکشن نہیں کیا، حالانکہ میں ایکشن کر سکتا تھا، میں سوشل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے باہر بھی میں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے صبر کا مظاہرہ کیا، میں نے برداشت کیا ہر چیز کو۔ اللہ نے اتنی سمجھ بوجھ تو دی ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پازیٹیو سوچ رکھی ہمیشہ، مجھے پتہ تھا یہ اس کی زبان نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور بول رہا ہے۔ جو چیزیں تھی وہ کلیئر ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ سیف اللہ بھائی نے بھی معذرت بھی کر لی ہے، یہ آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھیں گے، جو لکھی تھی وہ ڈیلیٹ بھی کر لی ہے۔ مجھے معلوم ہے کون کون فساد کے پیچھے ہے، مجھے سب معلوم ہے، اور میں دیکھوں گا بھی انشاءاللہ۔ چند ایک لوگ ہیں حسد کی بنیاد پر، جیلیسی فیکٹر کی بنیاد پر، یا نہ جانے ان کا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی بیچ میں، اور جو ہے نا اس بھائی کو بھڑکایا، اور اس نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی میرے خلاف جو ہے نا وہ کھڑا کیا۔ میں نے اپنی دوستی بچائی، میں نے اپنا بھائی بچا لیا، میں نے اپنا جماعت کا ایک ساتھی بچا لیا، اور جن لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپس میں اس سارے معاملات پیدا کرنے کی، ان لوگوں کو ایک مثبت جواب دیا، وہ بھی سارے ہمارے بھائی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہائی لائٹس آپ نے دیکھ لی ہوں گی، بیسیکلی اس طرح کی ویڈیوز میں بناتا نہیں ہوں، لیکن وقت کی ضرورت ہے، ایک میسیج ہے۔ حال ہی میں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دیکھنے والے دوستوں کو بھی یہ چیز سمجھاؤں کہ کبھی بھی آپ کے کسی خاص انسان کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ معاملات خراب ہو بھی جائیں تو آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے تو بات ہمیشہ سلجھتی نہیں ہے اور بگڑتی ہے، کیونکہ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون کتنا منافق ہے، پیٹھ پیچھے کون کیا گل کھلاتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ آسان الفاظ میں کہوں تو آستین میں کتنے سانپ گھوم رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں۔ جی السلام علیکم، یہ میرا ایک بہت پیارا بھائی ہے سیف اللہ، جو کہ کافی ٹائم سے ناراض چل رہا تھا مس انڈرسٹینڈنگ کے پیچھے۔ جب دو بھائی آپس میں خوش ہوتے ہیں نا، سجاد بھی ایک بات کہتے ہیں کہ جب دو بھائی آپس میں خوش ہوتے ہیں نا، تو تیسرا جو ہے نا ان کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے جو ہے نا وہ میدان میں آ جاتا ہے۔ اس سے میرا 2010 سے تعلق ہے، اور کراچی میں واحد بندہ ہوں جو سب سے پہلے جماعتی لحاظ سے یہ بھائی مجھے جانتا تھا، ایسا ہی بھائی۔ تو آج سے تقریباً کوئی 7 مہینے پہلے ہماری ایک موبائل میں ڈیل ہوئی تھی۔ بہرحال اس کے اندر الیکٹرانک چیزیں مسئلے آ جاتے ہیں، پیج اپروف، سی پی آئی ڈی اور پی ٹی اپروف، اس کی تینوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ اس کو ہو گئی تھی۔ یہ پی ٹی اپروف سمجھ رہا تھا، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ موٹرولا کے فون جو ہے وہ پاکستان میں پی ٹی اپروف نہیں ہوتے، پیج اپروف ہوتے ہیں۔ سی پی آئی ڈی کا چکر ابھی 2 مہینے سے آیا، تو اس بھائی کو اتنی نالج نہیں تھی، تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس ہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ مجھے پتا ہوتا تو میں خود نہیں لے لیتا۔ بالکل، ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی کہ ایک میرے اپنے پرسنل یوز کا فون تھا جو اس بھائی نے مجھ سے خریدا، اور اس کے بعد وہ 1-1.5 مہینے بعد جو ہے نا وہ بند ہو گیا۔ پانی میں گیا ہوا دیا صاحب، ایک پانی میں میرے پاس سے تو نہیں گیا، بہرحال میں جس مقصد کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بند ہوا، پی ٹی اے کا مسئلہ اس میں ہوا، تو بہرحال وہ پیچ بھی ہو جاتا ہے، اب نہیں ہوا، جیک کا مسئلہ تھا، تو اس کے اوپر اس بھائی نے جذبات میں آ کے سوشل میڈیا کے اوپر میرے اوپر کچھ جو ہے نا وہ تنقید کی، نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ میں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، حالانکہ میں اس سے بڑا کریٹر ہوں، میرے پاس اپنے پلیٹ فارم ہے، لیکن میں نے کوئی بھی اس طرح کے کام نہیں کیے جو یہ کر رہا تھا۔ میرا ایک بھائی غلطی کر رہا تھا، میں کیوں غلطی کروں؟ میں نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، اور آج یہ بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہے، ہم نے اپنے سارے مسئلے مسائل کلیئر کیے ہیں۔ اس نے دوسروں کے کہنے پر، اس نے جو نا مجھ سے بنا تحقیق کیے سوشل میڈیا کے اوپر جو نا اس نے میرے خلاف کچھ لکھا، اور بعد میں اس نے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیا، اور یہ بھائی جو نا اب میرے پاس بیٹھا ہے، بڑے بھائیوں کے کہنے پہ کیا، جس کے کہنے پہ بھی کیا، بہرحال اس نے ڈیلیٹ کیا کیونکہ اس کو خود پتہ تھا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو میں بھائی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ سیف اللہ آپ یہ بتاؤ، کیا آپ مجھے چور سمجھتے ہو؟ میں نہیں سمجھتا چور، لیکن جو موبائل ہے نا، مجھے موبائل کا پتہ ہوتا تو میں خود ہی لیتا، لیکن میں نے اسی وجہ سے آپ کو پیسے دیے کہ مجھے اچھے سے اچھا موبائل ملے گا۔ میں نے 7 سال کے بعد موبائل لیا تھا، میں نے بولا میرا بھائی اچھا موبائل دلائے گا، لیکن بھائی نے الٹا گردن۔ کیا میں نے جان بوجھ کے آپ کو فراڈ کیا؟ مجھے نہیں بولا کیا میں کیا فراڈی ہوں؟ آپ یہ بتاؤ۔ نہیں، میں نے کب بولا فراڈی ہے؟ تو آپ نے لکھا تھا نا، لکھا تھا میں نے جذبہ سے، جب 3 دفعہ لکھا تھا آپ، غلط لکھا یا صحیح لکھا؟ آپ نے بلوا کے مجھے ٹوپیاں کروا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں فراڈی ہوں؟ آپ فراڈی نہیں ہو، لیکن آپ بلوا کے میرا کال اٹھا کے آپ دیکھیں، ہم لوگ پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں بار بار مس انڈرسٹینڈنگ، حالانکہ دیکھا جائے تو سیف اللہ بھائی نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن میں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ مس گائیڈ ہوا ہے نا۔ تو جو اس نے سوشل میڈیا پہ لکھا وہ سب کچھ ڈیلیٹ ہے بھائی، بالکل وہ سب کچھ ڈیلیٹ ہے، غلط لکھا تھا نا، ایمانداری سے بالکل غلط لکھا تھا، لیکن سوشل سفر والے حقوق سندھ مارچ کے بعد میری ایک بھی پوسٹ نہیں ملے گی، نہ کمنٹ ملے گا۔
इंशाल्लाह नहीं मिलेंगे। और जो पहले मिला भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और जो पहले आपने किया था सब डिलीट कर दिया। वो तो उसी टाइम कर दिया था, दूसरे दिन ही, हमारी घंटे के बाद ही कर देता था। हमारी ये जब पोस्ट करता था 1 घंटे बाद ही डिलीट कर दिया करता था। हमारी मोहब्बतें फिर से जिंदा हो गई। इंशाल्लाह। मैं भाई हूँ आपका, अल्हम्दुलिल्लाह थे और है, और क्या अभी भी समझते हो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ किया दोबारा तो नहीं करोगे। इंशाल्लाह। चले जी, ये मेरा बहुत प्यारा भाई है, अल्लाह की कसम इससे मुझे बड़ी मोहब्बत है। इसने मेरा नमक खाया हुआ है, मैंने इसका नमक खाया हुआ है। इसने मुझे पहले खिलाया था 2011 में हैदराबाद में, इसने मुझे बिरयानी खिलाई थी, कराची की मशहूर बिरयानी खिलाई थी ना आपने। बस वो बिरयानी की वफ़ा है जो मैंने इससे की है। इसने मुझे गालियाँ दी, मैंने इसको जवाब नहीं दिया, और आज इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अगला बंदा अगर आपको गालियाँ देना तो आप खामोश हो जाओ, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। इसने बहुत कोशिश की तालियां बजाने की, लेकिन मैंने अपना हाथ नीचे रखा, हमारी ताली बजी नहीं, और आज हमारी मोहब्बतें फिर से ज़िंदा हो गई हैं। इसमें सबसे अच्छा काम जो किया वो सजाद भाई ने किया, बड़े भाई हैं। सजाद भाई ने इनको बुलवाया और ये आए भी, क्योंकि देखिए हम एक जमात हैं। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि एक ही जमात, एक ही अमीर की इताअत करने वाले 2 कारकुनान जो है एक ही स्टेज पर खड़े होकर आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मुँह बना के रखें, बात ना करें। सजाद भाई को ये बात बहुत बुरी लगी। सजाद भाई ने इस भाई को बुलाया और सारे मसले मसाइल क्लियर किए। जो शुबात है, जो चीज़ें थी वो क्लियर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सैफुल्लाह भाई ने भी माजरत भी कर ली है, या इस तरह की कोई बात नहीं लिखेंगे। जो लिखी थी वो डिलीट भी कर ली है, और मैंने शुरू से बड़े दिल का मुजाहरा किया है। मैंने भी इनको कहता हूँ कि मैंने भी आपको माफ़ किया। बाकी सजाद भाई आपसे कुछ बात कहना चाहेंगे। जी भाई। जी, ये जो मामला हुआ है, 2 भाई हमारे बैठे हुए हैं, तो इसीलिए बिठाया गया है कि सोशल मीडिया तक बात नहीं जानी चाहिए। कोई भी अगर आपस के मामलात हैं, अपनी 4 दीवारी में आपस में जो है ना उन मामलात को हल करना चाहिए। बेहतरीन तरीका ये है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि 2 भाइयों को, दोस्तों को खुश देखता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। सैफुल्लाह भाई की जितनी मैंने बातें सुनी है, बड़ा मासूम इंसान है। बात यह है कि मिसगाइड हो जाना या किसी की बातों में आके उसका रिएक्शन देना, वो भी सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर फयाज़ इसको जो है ना तहम्मुल मिजाजी से काम ना लेता है तो ये बात बहुत दूर तक जाती। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैफुल्लाह का कि वो हैदराबाद से आए। मैं भी घर छोड़ के आया हूँ, फयाज़ को भी बुलाया है। मैं शुक्रिया, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार दिल में कुछ भी नहीं है दोनों भाइयों के। यकीन करें, मुझे मालूम है कौन कौन मुझे सब मालूम है कि कौन इस जो है ना फसाद के पीछे है। और मैं देखूँगा भी इंशाल्लाह उसको, इनफरादी तौर पे मैं बात करूँगा। जो बंदे हैं मैं सब जान चुका हूँ कि कौन हैं, कौन इस बंदे को मिसगाइड कर रहा था, कौन मुझे भड़का रहा था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दिया है। बच्चे हैं वो, कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, वो भी भाई हैं हमारे, हम उनकी भी इस्लाह करेंगे। जो इनकी लेन देन में मसला था, फिर इसके बावजूद जो क्लेम उन्होंने किया, सैफुल्लाह ने यानी किया इन पे, तो उस क्लेम को सारा माना कि ये चीज़ होती नहीं है। लेकिन चले, मैं आपकी मोहब्बत में इस मामले को ख़त्म करने के लिए मैं आपका ये क्लेम सारा ख़त्म करता हूँ। इसी तरह सैफुल्लाह ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया। उसने कहा चले यार अब जाने दे, कोई मसला नहीं, जो हो गया। आइंदा मेरी तरफ से सोशल मीडिया पे या किसी को भी इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं हो। ठीक है सैफुल्लाह, ऐसा ही आपने यही कहा? इंशाल्लाह। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फयाज़। सजाद मैंने जैसे कहा बिल्कुल बात ठीक है। सैफुल्लाह देखें, अगर हम कारोबारी लिहाज से बात करें ना, मेरा तो उसको मोबाइल का काम नहीं था। अब जब इसको मोबाइल बेचने के 4 महीने के बाद सजाद भाई के साथ मैंने कोलैबोरेशन की है कैपिटल कराची और अवान ने, तो अब मेरा मोबाइल का काम है, मैं कह सकता हूँ। उस वक्त नहीं था। तो अगर आप भी मोबाइल यूज़र हैं, आपको पता है कि आप काउंटर छोड़ते हैं तो वारंटी ख़त्म होती है, लेकिन हमने फिर भी कहना है इसको जो तहफ़्फ़ुज़ात है हम पूरा करेंगे। अभी इस भाई को कहा है कि सामने मोबाइल की सबसे बड़ी जो शॉप है अवान की सामने खड़ी हुई है, डब्बा पे एक फ़ोन भी है, जो फ़ोन समझ आए ले जाओ, इसको अभी हम ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये भाई खुददार है माशाल्लाह, ये चाहता तो कोई भी फ़ोन ले सकता था, इसको ऑफ़र की सजाद भाई ने भी, मैंने भी। इसने कहा नहीं, खुददारी का ये जो ना मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं कहता हूँ कि मैं हाजिर हूँ, इस मामले को आप लोग जो है ना इंशाल्लाह ख़त्म ही है, और आइंदा ये बदनसीबी। तो ये भाई बिल्कुल खुददार भी है, जैसा सोशल मीडिया पे इसने लिखा। जिन भाइयों ने, पूरी जमात इस भाई को जानती है, उन बातों पे इग्नोर करें, उसको फोकस ना करें। इस भाई की खुददारी है। 1-1 लाख रुपए का फ़ोन पड़ा हुआ, इसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे बड़ा दिल खुश हुआ सैफुल्लाह भाई आपकी खुददारी के ऊपर। मेहनत मजदूर आदमी, गरीब तो नहीं कह सकते, 3 वक्त का माशाल्लाह पेट भर के खाना खाता है, और जहाँ जाता है वहाँ खाए बगैर जाता भी नहीं है। तो गरीब तो नहीं कहेंगे ऐसे, माशाल्लाह अल्लाह इसको पेट भर के खाना खिलाता है। लेकिन शरीफ आदमी है, और मुझे शुरू से पता था ये मासूम आदमी है, इसके पीछे कोई लोग हैं जो उसको भड़का रहे हैं। वो सब क्लियर हो गया है। ये भाई है, मैं सभी गले भी मिलूंगा, ठीक है ना भाईजान। आइंदा के बाद इंशाल्लाह हमारे दरमियान जो बात होगी हम आपस में डिस्कस करेंगे, और अभी इसके लिए हम कढ़ाई मंगवाते हैं इंशाल्लाह। खिलाए बगैर तो नहीं इसको छोड़ेंगे।
भाईजान एक आखिरी वॉइस नोट अपनी तरफ से एक भेज दें। नहीं एक नोट नहीं बोला जाए। अरे रुको तो सही। तो उम्मीद करता हूँ मामला आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा मसला था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, 200-300 रुपये का मसला था, लेकिन मिस गाइडेंस, मिस कम्युनिकेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग इस कदर हुई कि जो ना मामला इतना आगे चला गया। ये मेरा भाई मासूम है, इसको सोशल मीडिया का इतना नहीं पता, फेमस बहुत है ये और पूरी जमात के लोग इसे जानते हैं माशाल्लाह, हर बंदा इससे मोहब्बत करता है, ये भी सबसे मोहब्बत करता है। बस एक मिस हैंडलिंग हो गया एक केस मसरूफियत की वजह से। चंद एक लोग हैं हसद की बुनियाद पर, जेलिसी फैक्टर की बुनियाद पर, या न जाने उनका क्या मसला है, उन्होंने मिस अंडरस्टैंडिंग फैलाई बीच में और जो ना इस भाई को भड़काया और इसने सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी मेरे ख़िलाफ़ जो ना वो खड़ा किया और इस कदर जो ना मतलब नाज़ेबा बातें की कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैंने समझदारी का मुज़ाहरा किया। मैं जानता था मेरा भाई बड़ा मासूम है, मैं जानता था कि ये जो ना इसके साथ कोई मसला है, कोई इसको जो ना मिसगाइड कर रहा है मेरे ख़िलाफ़, तो इसलिए मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिया। हालांकि रिएक्शन बनता भी था मेरा, और जो लाजमी नहीं है कि लोग सिर्फ इसी को भड़का रहे थे, लोग मुझे भी भड़का रहे थे। लोग मुझे भी कह रहे थे कि यार देखो ये खुला खुला आपके ख़िलाफ़ लिख रहा है, आप इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो एक्शन लें, आप इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करें, साइबर क्राइम बनता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह का फजलो करम से अल्लाह ने इतनी समझ बूझ तो दी है कि किस वक्त क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने बड़े हौसले से काम लिया, मैंने सब्र का मुजाहरा किया, मैंने बर्दाश्त किया हर चीज़ को, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ऊपर, बिल्कुल इस माचिस की तीली की तरह मैं बिल्कुल नीचे हो गया और बराबर वाली तीली को मैंने जलने से बचाया। इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ? मैंने अपनी दोस्ती बचाई और मैंने अपना भाई बचा लिया, मैंने अपना जमात का एक साथी बचा लिया और जो है ना मैंने अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग को दोबारा बहाल कर लिया। और जिन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपस में इस सारे मामलात पैदा करने की, उन लोगों को एक मुस्बत जवाब दिया, वो भी सारे हमारे भाई हैं। तो बहरहाल वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई मामला आपके किसी करीबी से ख़राब हो जाए तो बजाय आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें, आप उसके साथ जो ना खुद बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस मामलात को हल करें। बेशक आप उससे 2 थप्पड़ खा लें या उसको 2 थप्पड़ लगा दें। देखिए मोहब्बत है ना दिल में होती है, दिमाग में नहीं होती। गुस्सा दिल में नहीं, गुस्सा दिमाग में होता है। जब आप किसी करीबी दोस्त को, भाई को जो आपसे नाराज़ है, अगर आप उससे 2 थप्पड़ खा लेंगे या उसको 2 लगा भी देंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि वो चीज़ें जो है ना वो उस हद तक नहीं बढ़ेंगी जिस हद तक खामोशी से ये चीज़ें बढ़ती हैं। मतलब आपके खामोश रहने पर, इग्नोर करने पे ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं। आप उसी वक्त गरम गरम मामले के अंदर आप उसके पास जाएँ और उससे 2 थप्पड़ खा लें या उसको लगा दें। अगर आप बड़े हैं तो लगा दें, अगर छोटे हैं तो खा लें, वो मसला हल करवाएं ना। तो बहरहाल हमने यहाँ पे कोई एक दूसरे से थप्पड़ एक्सचेंज नहीं किए। हमारे बीच में मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे बिज़नेस पार्टनर भी हैं, सज्जाद अवान साहब, वो बैठे थे, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और अल्लाह जानता है कि मैंने कभी भी दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जो चीज़ इसने मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे लिखी थी। तो बहरहाल हम दोनों भाइयों ने इंतहाई शफ़क़त के साथ इसके साथ मुज़ाकरात किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और हमने एक नया फ़ोन भी इनको बॉक्स पैक दिया है। कोई एहसान नहीं किया, इस भाई ने अपने पैसों से ख़रीदा है, सैफुल्लाह सईद ने अपने पैसों से ये मोबाइल ख़रीदा है। हाँ, हमने अच्छा पैकेज दिया है कि उसके ऊपर भी बर्डन ना पड़े और जो ना हमें भी ज़्यादा नुकसान ना हो। अल्लाह ताला इसका ये फ़ोन कबूल फरमाए और उसको इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने इसके साथ वादा भी किया है कि कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना। ये सुने ज़रा, गलत काम तो नहीं करोगे इसमें? नहीं किया उससे। तो बिल्कुल मैंने इससे ये वादा किया है कि कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना है मोबाइल से, क्योंकि ऑलरेडी पहले ये कर चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये नहीं करेगा, ये मेरा भाई है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सबको कि कभी भी कोई ताल्लुकात आपके ख़राब हो जाएँ तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस मामला को जो ना हल करने की कोशिश किया करें। और ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। जब सामने वाला गर्म है तो आपको ठंडा हो जाना चाहिए। ये सोशल मीडिया के ऊपर जब इसने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा की हुई थी तो मुझे गुस्सा तो बहुत था, लेकिन मैंने सब्र का मुजाहरा किया और मैं खामोश हो गया। अगर मैं भी भड़कता ये मामला और आगे जाते, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैंने अपने बड़ों के कान में हर चीज़ डाली, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं किया। हालांकि मैं एक्शन कर सकता था, मैं सोशल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के बाहर भी मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरबियत नहीं है घर से भी, जमात ने बहुत अच्छी तरबियत की है। तो मैंने अल्लाह के फजलो करम से रहमदिली का मुजाहरा किया और काफ़ी समझदारी के साथ इस मामले को मैंने टैकल किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब चीज़ें करके पॉजिटिव सोच रखी। हमेशा मुझे पता था ये इसकी ज़ुबान नहीं है, इसके पीछे कोई और बोल रहा है। पॉजिटिव रहा मैं, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपना दोस्त भी वापस ले लिया, अपनी भाईचारगी भी वापस ले ली, जमाती अंडरस्टैंडिंग भी वापस ले ली और उन लोगों को जो ना एक सबक दिया है जो लोग पीठ पीछे कोशिशें कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को भी तसल्ली हो गई होगी, सुकून हो गया होगा। मुझे मेरा दोस्त भी वापस मिल गया और जो कुछ मामलात हुए थे हमने बड़ी रहमदिली के साथ उन सबको सॉल्व कर लिया। तो ये मेरा मैसेज है, इसके ऊपर अमल कीजिएगा। जब सामने वाला गुस्सा हो तो आप ठंडे हो जाएं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका अपना आपसे दूर होने से बच जाता है।